So pitch, we're doing the rudders and propellers. So propeller we're doing. So your pitch is basically your linear distance at the distance in straight lines that the propeller will move in one complete revolution. So like you have in your car, this odometer there in the car. So when one revolution takes place, what distance does the car move? So how many revolutions takes place? So similarly, pitch is one revolution of your propeller. What distance it will move forward? And in one complete revolution, you're not allowing the slip. So without slip, theoretically, how much distance the ship will move with one turn of propeller? So because under actual operating conditions, what slip is going to occur, as propellers rotate, absolute forward movement, which is actual pitch minus theoretical pitch. So basically, your movement of the ship is depending on how much your slip is. So if your slip is there, that means positive slip means your actual movement is less than your theoretical movement. But if your actual movement is more than theoretical movement, that means you're being pushed from behind. Maybe there's a current behind which is pushing you, then it becomes a negative slip. Now you have various types of pitch. One is constant pitch, which is equal to each radius. Constant is fixed pitch, like you have your fan, ceiling fan. It's got constant pitch. So similarly, constant pitch on your ship, that means the blade will not, uh, that means create a pitch or change the pitch. That is, it will only rotate, it will not change the pitch. Then you have progressive pitch, which pitch increases along radial line. But now we'll not do into progressive pitch or what is variable pitch. We'll see variable pitch and controllable pitch as same. So we don't have to divide into various sections. We'll just see what is a fixed pitch and what is a variable or controllable pitch. Now in your controllable pitch, you are changing the blade angle. So in a controllable pitch propeller, even if you are doing stop movement in your telegraph, the blade is still moving, the propeller is still moving, but the pitch changes. So that means for a head movement and a stern movement and stop movement, the rotation of the shaft is in the same direction. Only the blade pitch is changing. So that is a controllable or variable pitch propeller. So we had done this earlier also. Pitch is the inches, the theoretical advance in one revolution. And slip is the difference between theoretical and actual. So slip is positive when theoretical is more than actual, and it is negative when theoretical is less than actual. So constant is the blades are not bending. But if your bend is there, then it's a variable or controllable pitch propeller. तो यहाँ दिया हुआ है आपका, अब ये ज्योमेट्रिक पिच हम नहीं करेंगे, पिच रेशियो और इसको अवॉइड करेंगे. वील जस्ट सी व्हाट इज पिच. इस डायरेक्ट जितना मूवमेंट एक प्रोपेलर का होता है इन वन रेवोल्यूशन, व्हाट इज द लीनियर डिस्टेंस इट विल मूव. So slip is between the theoretical and actual movement of the distance in one revolution. Now you have a fixed pitch propeller. So blade is fixed. It's fixed to the hub. वो changes नहीं हो रहे हैं. Now suppose this is moving in clockwise direction. What is the skew here? Skew कैसा है देखो. Skew बताओ. और rake कैसा है इसमें, इस blade में rake कैसा है?
और स्क्यू कैसा है व्हेन इट इज अ राइट हैंडेड प्रोपेलर? बताओ आप लोग, इसमें स्क्यू कैसा है और किस टाइप का रडर है ये, और स्टर्न फ्रेम किस टाइप का? चार चीजें हैं, इस डायग्राम से देख के बताओ, इस फोटो से देख के बताओ। पहला, इसमें रेक कैसा है। सेकंड, इसमें स्क्यू कैसा है। थर्ड, इसमें आपका स्टर्न फ्रेम किस टाइप का। और फोर्थ, इसमें रडर किस टाइप का। चलो बताओ इसको देख। हम तो सब पढ़ लिया। रेक आफ्ट, वेरी गुड। स्क्यू कैसा? राइट हैंडेड प्रोपेलर, राइट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घूमता है। स्क्यू कैसा है? क्योंकि अगर आंसर करोगे तो पता लगेगा आप समझ गए ये सारी चीज। फॉरवर्ड स्क्यू कि आफ्ट स्क्यू? राइट हैंडेड प्रोपेलर सर है, राइट डायरेक्शन फॉरवर्ड में। है सर, फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड स्क्यू है? हाँ, हाँ सर। फॉरवर्ड स्क्यू कैसे है तुम बताओ चलो। राइट हैंडेड प्रोपेलर है, लेफ्ट हैंड नहीं है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। फॉरवर्ड स्क्यू कैसे है ये बताओ। ऑपोजिट घूमेगा सर वो। सर राइट देखा? हैंड है ना सर? हाँ। अब इसकी चोंच किस तरफ है, आगे है कि पीछे है? वेयर इज दिस टिप ऑफ द प्रोपेलर, टिप ऑफ द प्रोपेलर मूविंग टू? सर ये पीछे रहेगा। पीछे रहेगा, ओके। पीछे सर। जब पीछे रहेगा और ये ब्लेड मूव करेगा तो लीडिंग ब्लेड, लीडिंग जो है सरफेस कौन सा है? ये वाला, ये लीडिंग वाला है। और ट्रेलिंग सरफेस ये वाला। लीडिंग सरफेस किस में ज्यादा होता है, फॉरवर्ड स्क्यू के आफ्ट स्क्यू में? फिर से ये भूल गया आप लोग, लास्ट वीक पढ़ाया था बट यू फॉरगॉटन। चलो आपको डायग्राम से फिर समझाता हूँ। दैट मींस यू फॉरगॉटन दैट स्क्यू क्या है, इसलिए आई वांटेड टू चेक कि कितना आपको मालूम है। राइट हैंडेड प्रोपेलर ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ब्लेड पीछे की तरफ, इसका टिप पीछे है, तो फॉरवर्ड स्क्यू है कि आफ्ट स्क्यू है? एक ने बताया था ये फॉरवर्ड स्क्यू है। आप से सर। अब क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। फॉरवर्ड स्क्यू का मतलब ये जो पॉइंटेड है ये आगे आगे जा रहा है डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट के साथ, लेकिन ये पीछे की तरफ है, तो लीडिंग सरफेस ज्यादा है, ट्रेलिंग सरफेस कम है। तो जब लीडिंग सरफेस ज्यादा है ट्रेलिंग सरफेस से, तो ये फॉरवर्ड स्क्यू है, क्योंकि ये सॉरी आफ्ट स्क्यू है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये टिप पीछे की तरफ, टिप पीछे है, इसका मतलब आफ्ट की तरफ है। अगर टिप आगे सेम डायरेक्शन में है तो ये फॉरवर्ड है। अब आपको डायरेक्ट फिर आपको दिखाते हैं फोटो। अब ये फोटो देखो। अब आपका डायरेक्शन राइट हैंडेड है, तो इसका पॉइंट किधर जा रहा है, आगे के पीछे? पीछे सर। पीछे। तो फिर ये कौन सा है, स्क्यू कौन सा है? अभी भी नहीं समझ आया? आप सर। सबको समझ आ गया कि नहीं आया? कितनों को समझ नहीं आया फिर दोबारा करें, क्योंकि सर स्क्यू लोग कंफ्यूज, एक बार सर बता दीजिए सर, कंफ्यूज हो रहे हैं सर। कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था, ये क्या बताया था, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं, ओके। और ये सरफेस जहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो यहाँ ज्यादा काटेगा ना, चाहे लकड़ी हो गर्दन हो, यस सब सर। फटाक से कट जाएगी, जल्दी कट जाएगी ना, सरफेस एरिया ज्यादा है। अब ये ऐसे घूम रहा है राइट हैंडेड में, तो ये जो लीडिंग एज है वो ज्यादा है, पानी को ज्यादा काटेगा, ट्रेलिंग एज कम है, ऐसे कर्व है। और इसकी चोंच पीछे की तरफ है, चोंच आगे नहीं है, पीछे है। जब चोंच पीछे है तो ये कौन सा हो गया, आफ्ट स्क्यू।
अब इसमें स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि पानी को ज्यादा काटेगा तो थ्रस्ट भी ज्यादा मिलेगा, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल इसमें काम आएगा। लेकिन जब हमने इसको उल्टी डायरेक्शन में घुमा दिया, दैट इज ये जो चोंच है इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, तो जब ये आगे की तरफ जाएगा इसका मतलब लीडिंग एज छोटा है, ट्रेलिंग एज बड़ा है। ये ट्रेलिंग एज है, ये बड़ा है, लीडिंग एज कम है, तो पानी बहुत कम काटेगा, जैसे ये हसुआ काटता है, सिर्फ घास काटता है। क्योंकि ये आगे की तरफ है इन द सेम डायरेक्शन, इसको हम फॉरवर्ड स्क्यू कहते हैं। नेगेटिव स्क्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी की जो सरफेस एरिया जो काट रहा है वो कम है, तो इससे बर्नौलीज प्रिंसिपल से थ्रस्ट कम हो जाता है। सो दिस इज नेगेटिव स्क्यू। अब क्लियर हुआ कि नहीं? लास्ट वीक आप लोग हाँ किया, इस वीक फिर नहीं किया। लास्ट वीक मैंने आपको पूछा तो समझ आ गया, कह रहे हाँ समझ आ गया, इस वीक फिर भूल गए। अब समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर आ बोल गया। दो यस अब समझ आ गया। अब गलती तो नहीं करोगे फिर? ये डायरेक्ट ये नहीं सर। इसको देख, अब समझ आ गया इसको देख के ब्लेड को। ओके, रडर किस टाइप का है? सेमी बैलेंस। सेमी बैलेंस। सेमी सर। वेरी गुड, सेमी बैलेंस। अब स्टर्न फ्रेम किस टाइप का है? कास्ट टाइप का है कि जो अदर टाइप का, रीइंफोर्स टाइप? कास्ट टाइप का है, क्योंकि इसमें कास्ट सोल पीस नहीं है। दो टाइप का बताया था ना। यस सर। तो ये वाले में नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि सेमी बैलेंस में नीचे सपोर्ट नहीं होता है, तो ये कास्ट टाइप का है। आपको फिर से इसमें आपका रडर और वो आपका एक और पीपीटी दिखाते हैं, इससे पहले आपका क्या था? बॉ एंड स्टर्न वाला दिखाएं, इसको मैं अब दोबारा दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को रिवीजन तो कराऊंगा लेकिन आप लोगों का भी भूल रहे हो, बहुत जल्दी भूल रहे हो। जो पढ़ाते हैं फिर भूल जाते हो, फिर पढ़ाते हैं फिर भूल जाते हो। तो ये जो आपको बताया था, दो टाइप के स्टर्न फ्रेम हैं, ठीक है। ये फैब्रिकेटेड है और एक ये कास्ट वाला। अब कास्ट वाले में नीचे देखो कोई कनेक्शन नहीं है, खाली है, यहीं ज्वाइन होता है और यहाँ खाली है, और नीचे जिसमें है वो बैलेंस वाले में आएगा। तो जो कास्ट सोल पीस वाला है दैट इज फैब्रिकेटेड, और ये वाला कास्ट स्टर्न फ्रेम है। तो जो देख रहे हो वो कास्ट स्टील स्टर्न फ्रेम है, ठीक है। ये वाला है, नॉट दिस टाइप। ये वाला फैब्रिकेटेड है। ये आपको और डायग्राम दिखाते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं इसमें है कि नहीं। हाँ, ये वाला, ये वाला देखो सेमी बैलेंस्ड है, सेमी बैलेंस रडर। और इस टाइप का देखो स्टर्न फ्रेम है जिसमें नीचे कोई कनेक्शन नहीं है, वो कास्ट टाइप का है। अब क्लियर हो रहा है? तभी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बीच में। क्लियर है? डाउट तो नहीं है? चलो नो सर। ओके, क्योंकि उसको घड़ी घड़ी पूछना पड़ता है, नहीं तो क्या है कि आप लोग जब तक मैं एंड तक जाऊं फिर फर्स्ट वाला भूल जाते हो। सो कंट्रोलेबल और वेरिएबल पिच प्रोपेलर में अंदर में हाइड्रोलिक्स होता है, जिससे ये पिच को चेंज कर रहे हैं। आपको वीडियो भी दिखाया था, आज फिर से दिखाएंगे, जिससे पिच चेंज कर रहे हैं। पिच चेंज करने से शाफ्ट एक ही डायरेक्शन में घूम करेगा, लेकिन स्टॉप अस्टर्न फॉरवर्ड में शाफ्ट का डायरेक्शन सेम होगा, ओनली पिच चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। इसमें हवा की जरूरत कम होती है। नॉर्मल फिक्स ब्लेड में, फिक्स पिच में एयर इज रिक्वायरमेंट इज मोर, इसलिए अगर आप ज़्यादा मूवमेंट करते हो फिक्स ब्लेड्स में आपकी एयर खत्म हो जाती है। इसमें कम, कंट्रोलेबल पिच में स्टार्ट करना है, और जब हम बंद कर दिए सारे मूवमेंट तब स्टॉप करेंगे, अदरवाइज स्टॉप इंजन पे ये स्टॉप नहीं होगा।
स्टॉप इंजन में मतलब ये शाफ्ट का रोटेशन स्टॉप नहीं होगा, ओनली ब्लेड की पिच चेंज होगी। ये कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर है। तो एडवांटेजेस क्या हैं कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर के? एक तो आपकी मनूवरेबिलिटी बेटर है। मनूवरेबिलिटी बेटर है क्योंकि शाफ्ट तो घूम रहा है, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो आसानी से। अलाउज इंजन टू ऑपरेट एट ऑप्टिमम रेवोल्यूशन। तो जब हम मनूवरिंग स्पीड में हैं तभी हम कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर को यूज करेंगे, अदरवाइज ओपन सी में इसको सडनली स्टॉप और ये सब नहीं करेंगे क्योंकि उस टाइम ज्यादा लोड आ जाता है। रिमूव्स द नीड फॉर रिवर्सिंग इंजन्स। रिवर्सिंग इंजन्स में हमें स्टॉप करके फिर गियर चेंज करना पड़ता है, जैसे कार में गियर चेंज करना पड़ता है। सीधा टर्न नहीं होता है, सीधी कार को हम आफ्टर नहीं जा सकते हैं, हमको गियर चेंज करना पड़ता है ना पीछे जाने के लिए। तो सिमिलरली शिप को पीछे जाने के लिए भी हमें स्टॉप करना पड़ता है, रिवर्स के लिए लगाना पड़ता है सेक्शन। लेकिन कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर में ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शाफ्ट एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, पिच को चेंज करते। रिड्यूस द साइज ऑफ एयर स्टार्ट कंप्रेसर्स एंड रिसीवर्स। क्योंकि हमें स्टॉप इंजन या स्टर्न करने में वापस इंजन को नहीं बंद करना होता है, फिर स्टार्ट करना पड़ता है। हमारा इंजन तो चल रहा है, हमारा प्रोपेलर का जो शाफ्ट है वो तो चल रहा है, तो इसमें एयर की जरूरत कम पड़ती है। तो इसीलिए हमारे स्टार्ट कंप्रेसर का साइज बेटर स्मॉलर है एज कंपेयर टू अदर शिप्स। नंबर 5, लोअर स्पीड में प्रोपेलर की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, हायर स्पीड में नहीं, लोअर स्पीड में एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है वेरिएबल पिच प्रोपेलर का या कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर का? फर्स्ट, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि ये इंट्रिकेट है, इसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसमें पाइपलाइन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो कॉस्ट बढ़ेगी। आपकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी ड्राई डॉक्स में, बिकॉज पाइपलाइन ज़्यादा हैं तो स्टर्न ट्यूब का वेट भी बढ़ जाता है, एंड इसमें डायमीटर भी लार्जर है बिकॉज इसमें ऑयल ट्यूब को भी एंटर करना पड़ता है। देन योर लोअर प्रोपेलर एफिशिएंसी एट मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग, MCR जो होता है, मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग। मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग होते हैं जब RFA दे देते हैं, उसमें प्रोपेलर की एफिशिएंसी कम हो जाती है, बट लोअर स्पीड में वो बढ़ जाती है। एक होता है नॉर्मल कंटिन्यूस रेटिंग, जब हम मनूवरिंग स्पीड पर जिसमें हम मनूवर कर सकते हैं, दैट इज नॉर्मल कंटिन्यूस रेटिंग। और एक होता है मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग, जिसके लिए प्रोपेलर डिजाइंड है, इंजन डिजाइंड है, उसमें प्रोपेलर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ड्यूरिंग ड्राई डॉक्स हम डायरेक्टली प्रोपेलर को नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें पाइपलाइन सब फिटेड है, तो हमें पूरा शाफ्ट को भी हटाना पड़ता है। जब भी हमको रडर को उसको अटेंड करना है तो हमें पूरा शाफ्ट को निकालना पड़ेगा, तो इसमें इसलिए कॉस्ट बढ़ जाती है। प्लस ये ऑयल कूल्ड होती है, तो ऑयल कूल्ड में पोल्यूशन के रिस्क ज़्यादा है। अभी हम स्टर्न ट्यूब की बात करेंगे, आफ्टर दिस वी विल हैव द डायग्राम देयर, देन आई विल एक्सप्लेन के इसमें कैसे पोल्यूशन होती है। सो दैट वाज advantage and disadvantages of controllable pitch propeller compared to fixed pitch propeller, and दोनों हमने अभी बताए। अब हम आते हैं व्हाट इज ऑयल लुब्रिकेटेड स्टर्न ट्यूब। तो आपके दो स्टर्न ट्यूब होते हैं, एक वाटर कूल्ड होता है, एक ऑयल कूल्ड होता है। स्टर्न ट्यूब क्या होता है? जो प्रोपेलर शाफ्ट है उसको एक कवर देते हैं और उसको कूलिंग करते हैं बाय स्टर्न ट्यूब, क्योंकि जब भी हमारा प्रोपेलर शाफ्ट मूव करता है उसमें गर्म हो जाता है वो। जिस तरह हमारे कार में कूलेंट होता है ठंडा करने के लिए हमारे AC को,
एसी का जब चलता है तो कूलेंट बराबर होना चाहिए, क्योंकि कूलेंट अगर नहीं होगा तो आपका धुआं निकल जाएगा इंजन में। उसी तरह हमारा जब शाफ्ट चलता है उसको भी ठंडा करना पड़ता है। तो ठंडा करने के दो तरीके हैं, एक तो पानी से ठंडा करो जिसको कहते हैं वाटर कूल, और एक होता है ऑयल कूल जिसको ऑयल से उसको ठंडा करते हैं। तो बेसिकली यहाँ भी ऐसी डायग्राम बना हुआ है, ये ऑयल लुब्रिकेटेड है, इसमें ऑयल शाफ्ट के आसपास रहता है। तो हम इधर से ऊपर से ठंडा ऑयल आता है और जब गर्म हो जाता है तो इससे ड्रेन करते हैं और फिर यहाँ से वापस टैंक में पंप करके उसको रखते हैं। तो ये यहाँ ठंडा हो जाता है तो फिर वापस रिसर्कुलेट करते हैं। और यहाँ आपके ऑयल ग्लैंड्स होते हैं सो दैट ये ऑयल लीक ना करे। जैसे इसमें दिया हुआ है, यहाँ पीक बल्कहेड है, यहाँ प्रोपेलर जो है क्रैंक शाफ्ट लगता है, और यहाँ में यहाँ आपका प्रोपेलर लगेगा और यहाँ आप पीक बल्कहेड और यहाँ में आपका क्रैंक शाफ्ट लगे। तो ये ऑयल ग्लैंड्स यहाँ लगे, पैकिंग लगी हुई है। तो यहाँ आपका प्रोपेलर लगेगा, ये ऑयल टाइट रोटेटिंग ग्लैंड है, ये प्रोपेलर पोस्ट है। बट ये डायग्राम आप नहीं बनाओगे, आपको दूसरा एक डायग्राम दिखाते हैं ये समझाने के लिए। फिर डायग्राम जो आपको बनाने हैं ये दो हैं जो बनाने हैं, पहले इसको समझा दें। तो ये ऑयल लुब्रिकेटेड स्टर्न फ्रेम में यहाँ आपका एक टैंक होता है, इसमें तो नीचे टैंक बना है, बट टैंक एक हायर एंड में होता है क्योंकि वहां से ग्रेविटी से नीचे जाएगा और इसको लुब्रिकेट करता है और इसको ठंडा भी करता है, और गर्म वाला नीचे से आएगा। तो एक्चुअल डायग्राम दिखाते हैं। अब आपके ये दो डायग्राम है, ये दोनों आपको याद करने हैं। ऊपर वाला जो है ये वाला, ये वाटर कूल्ड स्टर्न ट्यूब है, नीचे वाला ऑयल लुब्रिकेटर या ऑयल कूल्ड स्टर्न ट्यूब है। वाटर कूल्ड में बाहर की जो लाइनिंग है वो स्टर्न ट्यूब है, ठीक है। ये जो है ये बाहर की जो लाइनिंग है वो स्टर्न ट्यूब, ये बाहर में जो लगा है वो स्टर्न ट्यूब है। इसके अंदर एक शाफ्ट जाता है जिसको टेल शाफ्ट कहते हैं और प्रोपेलर शाफ्ट, और यहाँ ये कनेक्टेड होता है क्रैंक शाफ्ट से और पीछे इंजन से कनेक्ट होता है। तो क्रैंक इंजन घूमता है, क्रैंक शाफ्ट घूमता है, उसके बाद ये प्रोपेलर शाफ्ट घूमता है। यहाँ में देयर इज अ प्रोपेलर कनेक्शन विद द हब। इसके अंदर में जो ब्लैक कलर का है दैट इज लिग्नम वाइटे स्ट्रिप्स, ब्लैक कलर का लिग्नम वाइटे स्ट्रिप्स लुब्रिकेशन करता है। देन आपका गन मेटल लाइनर है। गन मेटल लाइनर बेसिकली ये जो इसमें तो यहाँ लिख दिया काला वाला नहीं है, ये वाला है, ये जो जिसमें ये रीडिंग दी गई, ये वाला जो अंदर की तरफ ये है दैट इज गन मेटल लाइनर। ये डायग्राम में ये अंदर की तरफ कंपोजिट लिग्नम वाइट है, ये ब्लैक वाला है, और ये शेडेड पोर्शन ये वाला जहाँ मैं आपको एरो दिखा रहा हूँ दैट इज योर गन मेटल लाइनर। गन मेटल लाइनर बेसिकली घसने नहीं देगा इसको, शाफ्ट को। इसमें भी गन मेटल लाइनर है, ऑयल वाले में भी, दोनों में गन मेटल लाइनर बिकॉज दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ शाफ्ट जाती है। अब यहाँ क्या है, 8 पीक बल्कहेड है। तो सी वाटर यहाँ से एंटर करता है, स्टर्न ट्यूब नट है और स्टर्न फ्रेम के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ से सी वाटर एंटर करता है, इसको कूलिंग करता है। आप यहाँ से कॉक भी खोल सकते हो और कूलिंग कर सकते हो, तो यहाँ से पानी निकल सकता है, लेकिन यहाँ ग्लैंड होता है सो दैट यहाँ से आपका इंजन रूम फ्लड ना हो, तो वाटर टाइट ग्लैंड यहाँ रहता है। तो ऑयल वाटर इसमें रहेगा, वाटर उसको ठंडा करेगा और निकल सकता है। इट इज ओपन हियर, देयर इज अ रिटेनिंग रिंग एंड स्टर्न ट्यूब नट सो दैट इट विल होल्ड योर फुल सेक्शन, नहीं तो निकल जाएगा। लेकिन ऑयल वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा, इसका डायग्राम भी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें भी आपका शाफ्ट है, आपको ये 3D 2D 2/3D और ये सब नहीं लिखना, आपको डायरेक्टली शाफ्ट बनाना है। और शाफ्ट के ऊपर में इसमें फर्क यह है कि इसमें ऑयल सील्स रहेंगे। यहाँ ऑयल सील है
एंड यहाँ ऑयल सील है. So these oil seals will prevent the oil from flowing into the sea to prevent pollution. यहाँ से भी बंद है कि यहाँ इंजन रूम में ऑयल नहीं आएगा, और यहाँ भी बंद है कि यहाँ से समुद्र में ऑयल नहीं जाएगा. यहाँ आपका प्रोपेलर लगा है. यहाँ में स्टर्न फ्रेम है, फिर यहाँ लॉकिंग नट है जिससे इसको लॉक कर दिया स्टर्न फ्रेम में और ये मूवमेंट नहीं होगा. ये जो पोर्शन है दैट इज योर स्टर्न ट्यूब. ये स्टर्न ट्यूब, ये पोर्शन. और जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो गन मेटल लाइनर है. सॉरी, ब्लैक वाला पोर्शन जो है दैट इज वाइट मेटल बेयरिंग, और उसके अंदर वाला पोर्शन ये वाला दैट इज द गन मेटल लाइनर. तो वाइट मेटल बेयरिंग विल बी डायरेक्टली इन कंटैक्ट विथ योर शाफ्ट, और ऑयल जो है वो इस टैंक में, हेडर टैंक में. ये आपका आर्फिक बल्क हेड है जहाँ ये कनेक्टेड है. यहाँ से ऑयल विल कम हियर. ये कॉक खोलेंगे, इट कम हियर इन द ऑयल सप्लाई. और यहाँ में ऑयल फीडिंग ट्यूब्स हैं, ये ऑयल फीड होल्स यहाँ बने हुए हैं. इसमें ये मार्क है एक्चुअली, ये जो होल बने हैं दीज आर ऑयल फीड होल्स, ये वाले होल. तो ये जो है ये 3 में मार्क्ड है. तो ऑयल इसके थ्रू जाएगा और लुब्रिकेट करेगा. जो ऑयल गर्म हो जाएगा वो यहाँ से ड्रेन करके ये कॉक खोलेंगे, इल कम टू द ऑयल ड्रेन. इससे हम पंप कर सकते हैं इसको खोल के डायरेक्टली ऑन हेडर टैंक, या हैंड पंप से हेडर टैंक में डाल देंगे. और हेडर टैंक में ठंडा हो जाएगा एंड फिर इसको रिसर्कुलेट करेंगे. नाउ दीज आर द ऑयल सील्स सो दैट ऑयल विल नॉट फ्लो टू द इंजन रूम. नाइदर यहाँ भी आपका ऑयल सील है सो दैट यहाँ समुद्र में नहीं जाएगा. So these are the 2 types of stern tube. अगर वो आपको आता है वाटर कूल्ड है तो ऊपर वाला बनाना है, और ऑयल लुब्रिकेटेड स्टर्न ट्यूब है तो नीचे वाला बनाना है. इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको क्योंकि ये है डिफिकल्ट डायग्राम, तो इसकी प्रैक्टिस दोनों की करनी पड़ेगी. पहले वो थोड़ा मार्क्स दे देते थे कि भाई ये बना दिया तो इसका मार्क दे दिया, ये बनाया तो इसके लिए मार्क दे दिया. अब नहीं देते, अब 0 कर देते हैं. तो इसीलिए वाटर कूल्ड का ऊपर वाला बनाना, ऑयल कूल्ड का नीचे वाला बनाना. मैं आपको डायग्राम एक दिखाऊंगा जो मैंने बनाया था वाटर कूल्ड का, सॉरी ऑयल कूल्ड का स्टर्न ट्यूब. तो ये वाला आपका स्टर्न ट्यूब है, वायलेट वाला. ये शाफ्ट है. अब क्योंकि ये इस टाइप का है, क्योंकि भाई पेंट में उससे अच्छा बनाना बड़ा मुश्किल है. हाथ से तो अच्छा बना देंगे, और पेंट में MS पेंट में ऐसे ही बना सकते हैं. ये आपका स्टर्न फ्रेम है ब्राउन वाला. यहाँ लॉकिंग नट लगा दिया. यहाँ आपका ऑयल सील है सो दैट ऑयल यहाँ फ्लो नहीं करे, और यहाँ आपका प्रोपेलर लगेगा. ये सेक्शन आपका क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होगा और इंजन में जाएगा. यहाँ आपका टैंक होता है. ये आपका ऑयल ड्रेन है और यहाँ पंप है जिससे हम ऊपर कर सकते हैं. ये आपका ऑयल सील्स लगा हुआ है. एंड अंदर में आपका वाइट मेटल बेरिंग है, और जो ये वाला सेक्शन है गन मेटल लाइनर है. ठीक है. सो ये सिर्फ आपको समझने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं ना. प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना बेटा. एग्जाम में तो मैं डायग्राम नहीं इस वाले से नहीं, इस वाले ऐसा से बना आप सकते समझ हैं. ये वाला नहीं, इसको ठीक है. ये नहीं, ये वाला इजी तो है, लेकिन इससे समझ लो बनाओ वो वाला, क्योंकि भाई एग्जाम वाला तो यही करेक्ट करेगा ना. मैंने तो समझाने के लिए बनाया, लेकिन आपको जो बनाना है वो यही बनाना है. ठीक है, आपको बनाना यही है. समझ लो उससे फिर बनाओ इसको. आप वो डायग्राम वैसे समझ के फिर बनाओ इसको, क्योंकि इसको ऐसे देखने से आपको बहुत डर लगता है ना. तो आप पहले उस डायग्राम से समझ लो फिर बनाओ इसको. जो मैंने आपको ये दिखाया है
इस डायग्राम से समझ लो, एक बार आपको समझ आ गया डायग्राम, फिर बनाना आसान है, क्योंकि डायग्राम को देखो समझना पड़ता है। डायग्राम को सीधा सीधा आपने सपोज बनाना शुरू कर दिया, ये डायग्राम, इसको भी कैसे बनाना है वो समझा देता हूँ। सबसे पहले आप ये स्टर्न ट्यूब बनाओगे, ऊपर और नीचे सेम है, ऊपर और नीचे सेम है, ऊपर वाला बनाओगे फिर नीचे वाला बनाओगे, फिर आप स्टर्न फ्रेम ये बनाओगे, लॉकिंग नट बना दिया, राइट। उसके बाद ऑयल सी लेदर बनाया, ऑयल सी लेदर बनाया, और फिर बाकी बाद में शुरू करो। ये जो सेक्शन है इसमें 3 हिस्से बनेंगे, ऑयल फीड होल्स हैं, यहाँ सेम रहेगा, जो ऊपर है वो नीचे है, नीचे प्लेन है और ऊपर में 3 जगह कट है। फिर यहाँ से आपका टैंक से पाइप जा रही है, और जो जो गर्म एयर है इल गो आउट विद द ऑयल वेंट, जो भी गर्म गैसेस हैं दैट एस्केप फ्रॉम द ऑयल वेंट। ये डी और 2D ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, फिर पंप बना दो और यहाँ हेडर बना दो, बस हो गया। ये तो बहुत सिंपल है, वाटर कूल तो बहुत सिंपल, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें ऊपर बनाना है और नीचे बनाना, दोनों सेम है, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम। यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ कनेक्ट किया, ये स्टर्न फ्रेम हो गया, आर्कपिक बल्कहेड हो गया, और ऊपर में जो कनेक्ट किया वो नीचे में कनेक्ट किया, बस। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ये बहुत सिंपल है। बना सकते हो कि नहीं, कि घबराहट हो गई? थोड़ी थोड़ी तो हो रही है। थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो फिर इसलिए कहा इससे प्रैक्टिस करो देख के और बनाओ वो, क्योंकि आप इतना सिंपल बना दोगे तो हो सकता है एग्जामिनर नंबर कम कर देना आपका। देखो अगर नहीं बनता तो फिर इसी टाइप का बना दो, कुछ तो मिलेगा। अब जिससे डायग्राम ही नहीं बनता है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, फिर यही बना दे, कुछ तो नंबर मिलेंगे ना, हाँ है कि नहीं? जिसको बहुत तकलीफ हो रही तो ये बना दे, और जो बना सकता है वो ये बना दे। दोनों तरीके दे दिए आपको, चॉइस आपकी है। देखो आसान वाला ये भी है, लेकिन इसमें नंबर कम मिलेंगे। बना तो ये भी सकते हो, लेकिन इसमें नंबर कम मिलेंगे। जिसमें सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे वो ये वाला है, सबसे ज्यादा इनमें मिलेंगे। तो फिर चॉइस आपकी है भाई, जिनको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो फिर यही वाला बनाओ, जिनको बस पास होना है फिर ऐसे ही करो जैसे बोला आपको। लेकिन प्रैक्टिस तो यही करो बेटर, मैं तो कहता हूँ यही प्रैक्टिस करो जो ये डायग्राम है। बाकी फिर आप लोग जैसा समझो सही, क्योंकि डायग्राम तो आपको बनाना है ना, मुझे तो बनाना नहीं है। तो कुछ नहीं बनाओ, उससे अच्छा कुछ तो बना ही दो, छोड़ने से अच्छा है तो फिर ये बना दो। अगर आप सोचते हो कि नहीं बनेगा तो फिर यही बनाओ फिर, ठीक है। मैंने आपको चॉइसेस दे दी हैं, क्या करना है, बाकी आप खुद मालिक हो अपने एग्जाम पेपर का। मैं तो मालिक नहीं हूं ना आपके एग्जाम पेपर का। ठीक है, इस मामले में कोई ठीक है बोलता ही नहीं है, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, डायग्राम से सिट्टी पिट्टी गुम। बना लेंगे सर। हाँ बस यही तो चाहिए मुझे, हाँ भाई यही चाहिए, सिट्टी पिट्टी गुम नहीं करो बेटा। ये है सबसे टफेस्ट डायग्राम, सीधी बात है कि दिस डायग्राम इज वेरी टफ, बट आपको तरीका बता दिया, इट बिकम्स इजी। सिर्फ इसको देख के आपको तकलीफ हो जाएगी, इसलिए मैंने वो इजी वाला बनाया, क्योंकि इसमें शेडिंग ऐसी की है ना, अगर इसमें कलर होगा तो बड़ा आसान दिखेगा, लेकिन जब इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा तो बड़ा डर लगेगा, इसलिए मैंने उसको कलर में बनाया। ठीक है, आगे करते हैं। क्या कह रहे हो? नहीं कलर, नहीं कलर करने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम क्यों वेस्ट करना बेटा। देखो डायग्राम में 20 मिनट से ज्यादा लगाओ नहीं, 3 घंटे का एग्जाम है, 20 मिनट से ज्यादा डायग्राम पे टाइम वेस्ट नहीं करो, क्योंकि आपको देखो 2 न्यूमेरिकल करने हैं, फिर डायग्राम करना है, फिर आपको 5 और क्वेश्चन करने हैं जो बड़े क्वेश्चन है,
तो अगर आप एक ही डायग्राम में 1 घंटा लगा दोगे फिर कैसे काम चलेगा, है ना। 20 से 25 मिनट से ज्यादा डायग्राम में नहीं वेस्ट करो। चलो मैक्सिमम आधा घंटा से ज्यादा टाइम नहीं लगाओ एक डायग्राम, राइट। यस प्रैक्टिस करोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको 1 घंटा लग जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो 20-25 मिनट 30 मिनट में लेबल और डायग्राम हो जाएगा। सो उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस शुरू कर दो, आपके पास 1.5 महीना है, प्रैक्टिस शुरू कर दो। 1.5 महीना है आपके सर कितने डायग्राम आएंगे सर? एक ही आता है ना, कंपलसरी तो एक ही आता है ना, 25 मार्क्स का। अब ये खत्म हो जाएगा तो आपका रिवीजन जो पेपर करूंगा उसके बाद रिवीजन शुरू करूंगा। तो एक बार आप क्वेश्चन पेपर देख लोगे, मैं सारे पेपर्स आपके 3-4 साल के पेपर्स आपके करूंगा, सो दैट यू विल हैव अ हैंग ऑफ द पेपर। उसके बाद रिवीजन कराऊंगा, राइट। तो ये वाटर कूल्ड है, जिसमें पानी यहाँ से फ्लो करता है, उसको कूलिंग करता है, और यहाँ आपकी सील लगी होती है। ये वाटर कूल्ड वाला। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे प्रोपेलर अटैच होता है टेल शाफ्ट में, लेकिन क्योंकि आपके कोर्स में दिया हुआ है इसलिए मैं करा रहा हूँ। हाउ दिस इज टू बी अटैच्ड। नॉर्मली इसको तो इंजीनियर्स को पूछते हैं कि अटैचमेंट कैसे होता है। सो एक तो होता है विथ की और एक होता है कीलेस। तो जहां चाबी के साथ अटैच होता है वो नट लगाना पड़ता है, ये दिखाता हूँ आपको। तो ये जो है इसमें नट लगाना पड़ता है, ये प्रोपेलर को इसके ऊपर नट से टाइट करते हैं। तो शाफ्ट के ऊपर इसी तरह लगता है प्रोपेलर। तो एक होता है चाबी, जिसको चाबी टाइट कर दो तो हो जाएगा। सो की अरेंजमेंट, की इज इंसर्टेड थ्रू द प्रोपेलर एंड टेपर ऑफ द ऑन द टेल। टेपर का मतलब पतला होना, शाफ्ट जहाँ पतला होता है। फिर लार्ज नट इज यूज्ड टू टाइटन दिस टू द टेल शाफ्ट, और एक बार ये टाइट हो जाता है कोन माउंट करते हैं सो दैट फ्लो इसके ऊपर बराबर रहे। दूसरा होता है बगैर चाबी के, इसमें ऑयल इंजेक्शन मेथड यूज करते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल को यूज करते हैं। हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर के सिस्टम में काम करता है। तो इन दिस द प्रोपेलर बोर का मतलब जहां उसका छेद है, एज सीरीज ऑफ एक्सियल एंड सर्कमफेरेंशियल ग्रूव्स, मतलब उसके अंदर धारी बनी होती है। जो प्रोपेलर का जो छेद है उसमें धारियां बनी होती हैं, और धारियों में ऑयल जाता है। So the propeller is mounted on the tapered section, patla section of the tail shaft, and high pressure oil is pumped through the grooves. जो धारियां बनी हैं प्रोपेलर के छेद में, वहां से हाई प्रेशर में ऑयल पंप किया जाता है, सो दैट जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसमें फिर वेलोसिटी कम हो जाती है। फिर एकदम वेलोसिटी कम होती है, बढ़ जाती है, तो फिर प्रेशर कम हो जाता है और वो चिपक जाता है। So the oil is injected mainly to reduce the friction and for absorption of heat, and this is done at the time of mounting the propeller on the shaft. First, high pressure is built between two parts. फिर प्रोपेलर को उस पे हाइड्रोलिक जैकिंग से चढ़ा दिया जाता है, एंड एक बार प्रोपेलर अलाइन हो गया, ऑयल प्रेशर को रिलीज कर दिया, और ऑयल प्रेशर रिलीज करने से बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो शाफ्ट और प्रोपेलर फासन हो जाते हैं। So that is the two methods of fastening your propeller with the shaft. तो ये टेपर्ड शाफ्ट है जिसमें ये इसको माउंट करके फिर इसको नट को टाइट करते हैं। फिर शाफ्ट टनल होती है जहां से आपका स्टर्न ट्यूब जाता है, ये दिखाते हैं आपकी, ये इस टाइप की होती है। तो जब आपके मिडशिप अकोमोडेशन होता था पुराने टाइप के जहाज में, तो शाफ्ट टनल बहुत लंबी होती थी, क्योंकि मिडशिप से स्टर्न तक प्रोपेलर जाता था, मतलब प्रोपेलर शाफ्ट जाता था। तो इसकी जो माउंटिंग्स हैं, ये टनल प्लेटिंग है, और यहाँ स्टिफनर लगा होता था, यहाँ सेंटर गर्डर होता था, और इसको फासन, ये आपका शाफ्ट जा रही है। So shaft tunnel is supposed to be watertight,
and the watertight seal in the bulkhead between the stern tube space and machinery space must be located in the watertight shaft tunnel. Vessel must be designed that margin line will not be submerged when watertight shaft tunnel is flooded. ये margin line मैं आपको बताऊंगा होती क्या है. Margin line अभी short में बताता हूँ. It is imaginary line which is 76 millimeter below your deck line. तो इसको इंटैक्ट स्टेबिलिटी में यह है कि अगर आपका एक कंपार्टमेंट फ्लड हो गया या दो कंपार्टमेंट फ्लड हो गए, मार्जिन लाइन को समझ नहीं करना चाहिए. अदरवाइज एक बार वो समझ होगी, इसका मतलब 7.6 सेंटीमीटर बचा है डेक लाइन तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद आपका जहाज डूब सकता है, क्योंकि डेक लाइन समझ हो गई तो जहाज डूब जाएगा. तो वो आपकी मार्जिन है फॉर सेफ्टी. ये आपको अलग से बताऊंगा. तो शाफ्ट की जो वाटर टाइट डोर है उसमें आइदर इट कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली स्लाइडिंग, एंड द मीन्स ऑफ क्लोजिंग शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि इसको ग्रेविटी या ड्रॉपिंग वेट से नहीं होगा, बट इसको हाइड्रोलिकली या मैनुअली क्लोज किया जाएगा. पॉजिटिव होना चाहिए. प्लस अगर कोई लिस्ट होगी 15 डिग्री तो भी इसको हम बंद कर सकते हैं अबव द बल्कहेड डेक. इसमें एक पॉइंट होना चाहिए जहां से हम उसको बंद कर सकते हैं. इट मस्ट बी ऑपरेटेड इन द विसिनिटी ऑफ द डोर इन एडिशन टू एनी पॉइंट अबव द बल्कहेड डेक. अगर इसमें कोई पावर नहीं है तो द डोर में बी क्लोज्ड एंड ओपन्ड बाय मैनुअल ऑपरेटेड पंप. हाइड्रोलिक पंप से तो चलो उसको खोल बंद कर सकते हैं, लेकिन सपोज देयर इज नो पावर, देन मैनुअल पंप से भी यू कैन ऑपरेट इट. प्लस इसमें इंडेक्स होना चाहिए विच शुड शो दैट ये खुला है कि बंद है, बिकॉज बाहर से आपको पता होना चाहिए ये शाफ्ट टनल का डोर खुला है कि बंद है. सो दैट मीन्स शुड बी प्रोवाइडेड. सो दैट इज अ शाफ्ट टनल. अब आपको जरा मार्जिन लाइन इसके बाद बताएंगे. पहले एक दो मूवीज इसकी दिखा दें, अगली क्लास में मार्जिन लाइन आपको दिखाएंगे. सर ये प्रोपेलर में कितने ब्लेड होने चाहिए? देखो प्रोपेलर के नॉर्मल बोट्स में 3 ब्लेड होते हैं, लेकिन उससे वाइब्रेशन बढ़ जाती है, तो 4 या 5 ब्लेड होते हैं जहाज़ों में. उससे वाइब्रेशन कम हो जाती है, आपका थ्रस्ट भी ज़्यादा होता है. जैसे आपको पता है पंखा है, तो पंखे में जितनी ज़्यादा ब्लेड होंगे उतनी तेज हवा होगी, उतना कॉस्ट ज़्यादा होगी. प्लस ये जो प्रोपेलर होता है इसका जो मटेरियल है ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का होता है और ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है. तो नंबर ऑफ ब्लेड्स बढ़ने से आपका थ्रस्ट बढ़ेगा, बट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी. आपकी स्लिप कम हो जाएगी विद द मोर नंबर ऑफ ब्लेड्स. तो अगर आपके ब्लेड्स कम होंगे आपकी स्लिप बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी कम होगी. पैसेंजर शिप में नंबर ऑफ ब्लेड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सो दैट क्योंकि उनको वाइब्रेशन नहीं चाहिए. तो अगर आपके ब्लेड्स कम होंगे तो वाइब्रेशन भी ज़्यादा होगी. सो नंबर ऑफ ब्लेड्स आर मोर देन 6 और 7, तो आपकी वाइब्रेशन कम होगी, आपकी स्लिप भी कम होगी, होल्डिंग पावर ज़्यादा होगी. तो ये आपका सीन है नंबर ऑफ ब्लेड्स का. ठीक है.